हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ई बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक मेंसुरेशन की सेकेंड यूनिट सॉलिड फिगर्स की एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। द लेंथ, breadth and the height of a classroom are in the ratio 3:2:1. A student required 3600 centimeter square of floor area to sit. If a maximum of 150 students can sit in the classroom, find the dimension of the classroom. So यहाँ पर आपको ratio of length, breadth and height of classroom is 3:2:1. सो यहाँ से हम इसका कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर बी एक्स, सो L is equal to 3x, B is equal to 2x and H is equal to x. Next we have area of floor for one student, that is 3600 centimeter square, and number of students in a class is 150. So यहाँ पर area of the floor, that is for one classroom, is going to be 3600 centimeter square multiplied by 150. So this is going to be 1 2 3 5 6 30, and in all we'll have this as 5 4 times 0. So यहाँ पर आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द area of the floor for one classroom. Next, area of the floor according to this length into breadth से अगर हम निकालें length into breadth, so it is 3x into 2x, that should be equal to 5 4 1 2 3 4. so यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3 into 2, सो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 6 9s, सो इट इज 90,000. सो x इज गोइंग टू बी 300. सो यहाँ से हम l की वैल्यू, b की वैल्यू और h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो लेंथ विल बी 3 into 300, दैट इज 900 सेंटीमीटर. Breadth will be 2 into 300, that is 600 centimeter, and height is going to be 300 centimeter. So इसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें, दिस इज 9 मीटर 6 मीटर एंड 3 मीटर्स. अब हम इसका डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं. द डायमेंशन of classroom is 9 by 6 by 3 meter cube. Question number 15. The length and the breadth of a hall are 22 meter and 18 meter respectively. If the total area of the floor and the ceiling is equal to the total area of 4 walls, find the height of the hall. So यहाँ पर आपको लेंथ, दैट इज 22 मीटर्स गिवन है, और ब्रेड्थ दैट इज 18 मीटर्स गिवन है. तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं टोटल एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, that will be
L इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय 2, फ्लोर और सीलिंग के लिए हम निकाल रहे हैं, सो 22 इंटू 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी होता है। ओके, तो यहाँ पर हम 2 इंटू हाइट, एल है हमारे पास 22 एंड बी है हमारे पास 18। तो अब हम यहाँ इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज इसको जब हम सॉल्व करेंगे वील गेट द वैल्यू एज 792 मीटर स्क्वायर। सो 792 इज इक्वल टू 2 इंटू एच, और इसको जब हम ऐड कर देंगे दिस इज इक्वल टू 40। ओके, so height will be 792 divided by 80. So solving this we'll get approximate value as 9.9 meters as the height of the hall. Question number 16. The dimensions of a room are 8.6 meter by 6.4 meter by 4 meter. It has 2 doors, each measuring 2 meter by 1 meter and 4 equal windows in the shape of squares. If the cost of painting the 4 walls is rupees 4480 at rupees 40 per meter square, find the size of windows. So यहाँ पर आपको dimensions of room given है 8.6 मीटर बाय 6.4 मीटर बाय 4 मीटर, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। सो अब हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू एच एल प्लस बी। सो 2 इंटू 4, 8.6 प्लस 6.4, so this is going to be 8 into 6 plus 8 is 14, 15. So 15 into 8 is going to be 120 meters square. That is the area of 4 walls. Now we have 2 doors. So area of 2 doors will be equal to 2 into 2 meter multiplied by 1 meter. So it is going to be 4 meters square. And we have 4 equal windows of shape squares. So let the side of square windows be x. Therefore area of 4 windows will be 4 into x square, that is 4x square meter square. So अगर हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स जिसमें कि ये सारी चीजें फिटेड हैं, ओके, सो एरिया ऑफ पेंटिंग द वॉल बोल सकते हैं, पेंटिंग द वॉल। सो जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है इसमें से हम माइनस कर देंगे डोर्स का और माइनस कर देंगे विंडोज का। सो दिस इज गोइंग टू बी 116 मीटर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। As we know, the rate of painting is going to be 40 per meter square for this much. So area of 4 walls to be painted will be equal to 4480 divided by 40. So it is going to be 112 meter square. So ये दोनों equal हो जाएंगे. So 116 meter square minus 4x square is equal to 112 meter square. So इसको जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा. So -4x square is equal to -4. So x square is equal to 1. Therefore x is equal to 1. That is for the side of window. तो अगर हमको
विंडो का साइज निकालना है, देयरफॉर साइज ऑफ वन विंडो विल बी 1 square, because x square हो जाएगा, that is 1 meter square. That is the size of one window. Question number 17. The measures of a rectangular field are 20 meter by 15 meter. A cubical ditch of edge 4 meter is dug at each of 4 corners of the field. The removed soil is spread uniformly over the remaining field. By what height does the field get raised? So मान लीजिए ये हमारे पास एक फील्ड है जिसके अंदर चारों तरफ हमने ये डग किया है और इसका जो सॉइल निकला है वो इसके अंदर हमने स्प्रेड कर दिया है। तो सबसे पहले है यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 15 मीटर। हमारे पास जो एरिया है दैट इज 20 by 15, दैट इज 300 मीटर स्क्वायर का हमारे पास एरिया है। अब जो इन्होंने ये डिच फाइंड की है क्यूबिकल, दैट इज 4 meters। ओके, सो यहाँ से हम साइज ऑफ ईच डिच फाइंड करें। सो 4 by 4 दैट इज 64, 4 by 4 by 4 मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट इनका सेम है, सो इट इज गोइंग टू बी 64 मीटर क्यूब। सो ये हमारे पास डिच हमने यहाँ पर खोदी है चारों साइड और इससे ये जो सॉइल निकला है इसको हमने फील्ड में फैला दिया है। सो यहाँ पर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug from 4 ditch will be 64 multiplied by 4, that is 256 meter cube, and area of the ditch will be 4 by 4। ऐसे हमारे पास 4 डिच हैं तो चारों को हम अगर मल्टीप्लाई करें वी गेट 64 meter square. So now remaining area of field will be equal to 300 meter square से हम 64 meter square माइनस कर देंगे, so we'll get 236 meter square. Therefore, by spreading soil, height raised will be equal to 256 जो कि वॉल्यूम था डिवाइडेड बाय 236 जो कि एरिया हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 64 by 59 जिसको हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं 15 by 59 meters, that is the height raised on spreading the soil. Question number 18. A rectangular hollow pipe is made 1 centimeter thick iron sheet. If the length of the pipe is 2 meter and the other outer dimension of the pipe are 10 centimeter by 8 centimeter, then find the weight of the pipe if 80 centimeter cube of iron weighs 1 kg. So यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है that is 2 meter of the pipe, अगर हम इसकी इनर लेंथ की बात करें सो इट इज गोइंग टू बी 200 सेंटीमीटर के फॉर्म में अगर ले लेते हैं। सो लेंथ जो है दैट इज 2 मीटर, इसको अगर हम 200 सेंटीमीटर लिख लें, ब्रेड्थ जो गिवन है दैट इज इन 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 8 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर हम यहाँ पर ब्रेड्थ की बात करें सो दिस इज गोइंग टू बी 10 minus 1। सो ये इतना थिक है इसलिए सो इसको 2 बार हम माइनस करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली विथ हाइट 8 -1 -1 2 बार दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो हमारे ओरिजिनल
जो ब्रेड्थ और हाइट है उसमें से हमने 2 सेंटीमीटर माइनस कर दिया है। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड will be equal to outer volume minus the inner volume. So outer volume जो हो जाएगा that is 200 multiplied by 8 multiplied by 10 minus 200 multiplied by 8 multiplied by 6. So this is going to be 16,000 minus 9,600. So it is 6400 centimeter cube. Next we have the weight of pipe, that is 80 centimeter cube per kg. So total weight will be equal to 6400 multiplied by 1 upon 80. So it is going to be 80 kg of the pipe. So therefore its weight is 80 kg. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।